السلام علیکم۔ ایم اے اسٹوری سینٹر میں خوش آمدید، جہاں کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ آج آپ سننے جا رہے ہیں ایک ایسی داستان جو نہ صرف خلیفہ ہارون الرشید جیسے بادشاہ کا غرور توڑتی ہے، بلکہ ایک درویش کی خاموش دانائی سے ہمیں وہ سبق دیتی ہے جو کتابوں میں نہیں، زندگی میں ملتا ہے۔ یہ کہانی ہے ریت کے محل کی، جہاں تاج جھکتے ہیں اور سچائی ابھر کر تخت بن جاتی ہے۔ تو آئیے، دل تھام لیجئے، روح کو سننے دیجئے اور اس کہانی میں ڈوب جائیے۔ مدینہ سے بہت دور بغداد کی شان و شوکت اپنے عروج پر تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دربار دنیا کے ذہین ترین علماء، شاعروں اور وزیروں سے بھرا رہتا۔ اس کا محل سونے، چاندی اور خوشبوؤں سے مہکتا اور اس کے تخت کے سائے میں خود غرور سانس لیتا۔ اس روز آسمان پر سورج خوب چمک رہا تھا۔ خلیفہ اپنے عظیم وشان محل کی بلند چھت پر کھڑا تھا۔ نیچے کا شہر، بازار، مسجدیں اور دور دور تک پھیلی سلطنت اس کی نگاہوں کے نیچے تھی۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور خود سے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہی کا مالک آج خود کو محسوس کر رہا ہے۔ وزیر، درباری اور خدمت گار سب اس کے ارد گرد موجود تھے۔ ان کی نگاہوں میں خوشامد، لفظوں میں چاپلوسی اور لہجے میں صرف تعریف تھی۔ کوئی کہتا، امیر المومنین، آپ کا سایہ قیامت تک امت پر رہے، اور کوئی جھک کر بولتا، زمین اب پر فخر کرتی ہے، آسمان رشک۔ خلیفہ خاموشی سے ان الفاظ سے خوش ہوتا رہا، جیسے دل کے اندر کسی ایسی تسکین کا چراغ جلتا ہو جو صرف اقتدار کی طاقت سے روشن ہو۔ اسی لمحے خلیفہ نے اپنے وزیر خاص سے پوچھا کہ آج بہلول دانا کہاں ہے؟ وزیر نے عرض کیا کہ وہ دربار کے باہر بیٹھا کچھ بڑبڑاتا ہوا نظر آیا تھا، شاید پھر سے اپنے مجذوب عالم میں گم۔ خلیفہ کے لبوں پر ایک ہنسی آ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ بہلول کو فوراً دربار میں بلایا جائے۔ چند لمحوں بعد درویش بہلول دانا، پرانے کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کچا لکڑی کا عصا لیے دربار میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ خلیفہ نے اسے غور سے دیکھا، جیسے اسے کسی پرکھ کے ترازو میں تول رہا ہو۔ بہلول نے نہ جھک کر سلام کیا، نہ چاپلوسی کی، بلکہ آ کر کھڑا ہو گیا، خاموش، پرسکون، بے نیاز۔ خلیفہ نے بظاہر ہنستے ہوئے کہا کہ آج تو بادشاہی اپنے عروج پر ہے، اور تجھے بھی شاید میرا جاؤ جلال ماننا پڑے گا۔ درباری ہنسے، مگر بہلول کا چہرہ بے تاثر رہا۔ اس نے خلیفہ کی طرف دیکھا، جیسے دل سے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ خلیفہ نے اصرار کیا کہ کچھ تو کہو، کیا نظر آتا ہے تجھے اس تخت پر بیٹھے بادشاہ میں؟ بہلول نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آواز میں کہا کہ اگر خلیفہ چاہے تو وہ اسے ایک ایسا محل دیکھا سکتا ہے جو اس محل سے کہیں زیادہ شاندار ہو، لیکن اس کی عمر بہت مختصر۔ خلیفہ نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا کہ کہاں ہے وہ محل؟ کس شہر میں؟ بہلول نے جواب دیا کہ وہ محل بغداد سے تھوڑا باہر ایک خاموش میدان میں بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے خلیفہ کو خود ساتھ آنا ہوگا۔ درباری ہنسنے لگے۔ وزیر نے سرگوشی میں کہا کہ شاید بہلول کی عقل پھر اڑ گئی ہے، مگر خلیفہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شاید اسے کوئی کھیل، کوئی نیا تفریحی خیال ملا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ خود بہلول کے ساتھ جائے گا، دیکھے گا وہ محل کیسا ہوتا ہے جو الفاظ سے ہی تعمیر ہو۔ محل کے خدام، وزیر اور محافظ سب حیران تھے، لیکن خلیفہ کی ضد کے سامنے کسی میں جرأت نہ تھی۔ کچھ ہی وقت میں ایک چھوٹے قافلے کے ساتھ خلیفہ بہلول کے پیچھے چل پڑا، بغداد کی دیواروں سے باہر ایک سنسان میدان کی طرف۔ وہاں پہنچ کر بہلول نے ایک جگہ ہاتھ سے دائرہ بنایا، زمین پر جھک کر ریت اٹھائی اور خلیفہ سے کہا کہ تھوڑا پانی اور چند تنکے منگوائے جائیں۔ خلیفہ ہنسا، یہ مذاق تھا یا آزمائش؟ بہلول نے خاموشی سے اپنے کپڑے کے پلوں سے تنکے نکالے اور ہاتھوں سے ریت کو ترتیب دینے لگا۔ خلیفہ دیکھتا رہا، جیسے کسی بچے کی حرکتوں پر مسکرا رہا ہو۔
चंद मिनट बाद बहलोल ने आसमान की तरफ देखा और आंखें बंद करके दुआ मांगी। इसकी आवाज बहुत नरम थी मगर अल्फाज वाज़े। या रब, जो गुरूर में रहता है तो आज उसे फना की झलक दिखा दे, ताकि वो खुद को ना समझे बल्कि तुझे पहचाने। दुआ खत्म हुई। बहलोल ने खलीफा की तरफ देखा और इतना ही कहा, यह है वो महल जो तुम्हारी बादशाही से ज्यादा शानदार है, मगर सिर्फ एक झोंके की मार पर। खलीफा चौंक गया। दरबारियों के होंठ खुश्क हो गए। खलीफा ने कहा, यह खेल है या फलसफा? बहलोल मुस्कुराया और रेत के महल की तरफ इशारा करके सिर्फ इतना कहा, आपकी सल्तनत भी ऐसी ही है ए खलीफा, वो फर्क सिर्फ इतना है कि इसका झोंका अभी आया नहीं। बहलोल की बात खत्म हुई मगर हुआ जैसे रुक सी गई। खलीफा की आंखों में पहली बार संजीदगी उतरी। उसकी सल्तनत, इसका गुरूर, इसकी शाहाना चाल, सब चंद लम्हों के लिए जैसे थम गए। मुहाफिज और वजीर इर्द गिर्द देखने लगे। खलीफा ने एक लम्हा जमीन पर निगाह जमाई, फिर मुस्कुराने की कोशिश की जैसे बहलोल की बातों को मजाक में उड़ाना चाहता हो, लेकिन दिल की गहराई में कोई नरम सा जख्म लग चुका था। वापसी के सफर में खलीफा खामोश था, खिलाफ मामूल। महल वापस आकर वो अपने हुजरे में चला गया। खुद्दाम ने खाने की कई डिशें सजा दें मगर उसका दिल ना चाहा। सब कुछ था मगर अंदर एक खालीपन, एक खामोश सवाल सा गूंज रहा था। अगर बहलोल सच कह गया तो? रात गहरी हो रही थी। बगदाद की रोशनियों में सन्नाटा छुपा हुआ था। खलीफा बिस्तर पर लेटा मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। दरवाजे के बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी मगर दिल के अंदर तूफान सा बरपा था। चंद घंटे यूं ही गुजर गए और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि नींद गालिब आ गई। मगर यह नींद मामूली ना थी, ये एक निशान थी। खलीफा ने खुद को एक सुनसान मैदान में पाया, बिल्कुल वही मकाम जहां बहलोल ने रेत का महल बनाया था। मगर अब वहां ना बहलोल था ना कोई दरबारी, सिर्फ खलीफा, रेत का महल और एक सन्नाटा। उसने देखा कि रेत का महल बुलंद हो रहा है, चमक रहा है, जैसे सूना बन गया हो। खलीफा उसकी तरफ बढ़ता है, हाथ बढ़ाकर छूना चाहता है, लेकिन जो ही वो करीब आता है एक तेज आंधी आती है और महल धड़ाम से बिखर जाता है। खलीफा पीछे हटता है, हुआ रुकती है और एक गहरी गूंजती आवाज फिजा में उभरती है, ए तख्त नशीन, अगर महल को सच समझा तो फना तेरा मुकद्दर है, अगर खाक को पहचाना तो नजात तेरा इनाम है। खलीफा घबरा कर पीछे हटता है। अचानक उसके चारों तरफ काली लंबी पोशाकों वाले फरिश्ते आते हैं, हाथों में तराजू, निगाहों में सवाल। वो खलीफा के अमाल को तोलने लगते हैं। तख्त, जंगे, महल, गुलाम, खजाने, सब एक पल्ले में और दूसरे पल्ले में सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज गुरूर। पल्ला झक जाता है गुरूर का। फिर एक और आवाज गूंजती है, जिसने दुनिया को समझा दौलत, उसने अपना असल खो दिया। खलीफा चीख पड़ता है, नहीं, मैं बादशाह हूं, मैंने अदल किया है, मैंने। लेकिन आवाज जवाब देती है, अदल ताज पर नहीं, दिल पर होता है। एक धमाका सा होता है और खलीफा की आंख खुल जाती है। पसीना उसकी पेशानी से बह रहा होता है, सांस फूली हुई, दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। दरवाजे पर मुहाफिज की आहट सुनाई देती है, लेकिन खलीफा चुपचाप बिस्तर से उतरता है, वुजू करता है और पहली बार रात के इस पहर तन्हाई में सजदे में गिर जाता है। वो सजदा जो शायद उम्र भर में कभी ना किया हो। अल्फाज लबों पर खुद आते हैं, या अल्लाह। जो बहलोल ने कहा वो मजाक ना था, वो आईना था। वो रात यूं ही गुजरती है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, दिल हल्का होता जाता है। गुरूर का खोल जैसे धीरे धीरे पिघलने लगता है। सुबह का सूरज तुलू होता है,
रोशनी महल के दर व दीवार को छू रही होती है, मगर खलीफा का दिल इस रोशनी की तलाश में होता है जो ना महल में है ना सल्तनत में, सिर्फ सच्चाई और आजिजी में। इस सुबह खलीफा सबसे पहला हुक्म देता है, बहलोल दाना को फौरन ढूंढा जाए, मुझे इससे कुछ सीखना है। बगदाद की सुबह खास थी, न सिर्फ इसलिए कि सूरज सुनहरी शुआओं के साथ शहर की गलियों को रोशन कर रहा था, बल्कि इसलिए भी कि आज खलीफा हारून अल रशीद की आंख सजदे से उठी थी, गुरूर के बोझ से हल्की और हक की रोशनी से बोझल। सुबह का वक्त था, महल की राहदारियों में खादिम, मुशीर और दरबारी अपनी मामूल की हलचल में थे, मगर खलीफा के चेहरे पर एक मुख्तलिफ सुकून, एक अंदरूनी थकन और आंखों में वो जस्तजू नजर आ रही थी जो सिर्फ वही जान सकता है जिसे रात की तन्हाई में अल्लाह ने जगाया हो। खलीफा ने हुक्म दिया कि बहलोल दाना को तलाश किया जाए। तमाम वजीरों और मुहाफिजों को मुतहर्रिक कर दिया गया। बाजार, मस्जिदें, शहर के दरवाजे, खानकाहें, हर जगह तलाश शुरू हो गई, मगर बहलोल कहीं ना मिला। खलीफा के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो चाहता था कि इस दिल की कैफियत को किसी ऐसे के साथ बांटे जो इस दुनिया के जाल से आजाद हो। वो चाहता था कि बहलोल उसे समझाए कि कल रात किया था, ख्वाब या तंबी। दोपहर का वक्त हो चला था जब एक कम उम्र लड़का महल के दरवाजे पर पहुंचा। वो हाँफता हुआ था, हाथ में छोटा सा कागज थामे। मुहाफिजों ने पूछा, क्या है तेरे पास? लड़के ने बस इतना कहा, बहलोल दाना ने यह पैगाम दिया है, कहा खलीफा को दे देना, वो समझेगा। पैगाम फौरन खलीफा के सामने रखा गया। वो जल्दी से लिफाफा खोलता है, अंदर सिर्फ 2 जुमले थे, जो सच का तालिब हो वो सच के दरवाजे पर आता है। दरवेश तलाश नहीं किया जाता बल्कि पहचाना जाता है। खलीफा एक लम्हे को रुका, फिर इसने ऐलान किया कि वो खुद निकलेगा, तन्हा, बगैर किसी मुहाफिज अशान व शौकत के। वही लिबास पहना जो आम लोगों का होता है, एक सफेद चादर और चप्पल। महल के दरवाजे पर सब हैरान थे। बगदाद के सबसे ताकतवर इंसान को आज जैसे दुनिया के लिबास से नफरत हो गई हो। खलीफा की आंखों में एक फैसला था, मैं अब बादशाह नहीं, एक सवाली हूं। खलीफा शहर की गलियों में चुपचाप चलता रहा। वो हर इस जगह गया जहां बहलोल को देखा गया था। वो छोटे बच्चे के साथ बैठा हुआ, किसी बीमार को पानी पिलाता हुआ, मस्जिद के दरवाजे पर फकीर के पास खामोश बैठा हुआ। आखिरकार एक मस्जिद के सहन में खलीफा ने देखा कि एक दरवेश सर झुकाए एक गरीब शख्स के साथ जमीन पर बैठा हुआ है। ना चटाई ना साए का इंतजाम, इसके पास एक रोटी थी। आधी उसने फकीर को दे दी, आधी खुद चबा रहा था। खलीफा करीब गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। बहलोल दाना, उसने चुपचाप करीब जाकर बैठने की इजाजत मांगी। बहलोल ने बगैर देखे सर हिलाया, जैसे जानता हो कि आने वाला कौन है। खलीफा ने आहिस्ता से कहा, ए दरवेश, रात ने मुझे जगा दिया है। मैं वही हूं जो कल महल में खड़ा था, मगर आज जमीन पर बैठा हूं। मुझे वो सच चाहिए जिसने तुम्हें पुरसुकून किया है और मुझे बेचैन। बहलोल ने तब पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखों में वही सुकून, वही बेनियाजी और एक गहरी हमदर्दी। उसने सिर्फ इतना कहा, तो महल से निकला है, बहुत अच्छा, अब खुद से भी निकल, तभी तुझे वो रोशनी मिलेगी जो बादशाहों को नहीं फकीर को मिलती है। खलीफा ने पूछा, क्या मैं सीख सकता हूं? बहलोल ने जवाब दिया, जो सजदे में आंखों से आंसू बहा सकता है वो सब कुछ सीख सकता है। खलीफा ने अपना सर झुका दिया। चंद लम्हे यूं ही गुजरे, फिर बहलोल ने इसे बगदाद के एक ऐसे इलाके में ले जाना शुरू किया जहां आम लोग रहते थे, मजदूर, फकीर, बेवाएं, यतीम बच्चे। खलीफा ने वहां देखा कि एक औरत अपने बच्चे को रोटी का छोटा टुकड़ा दे रही है और खुद भूखी है। एक नौजवान यतीम बच्चों को पढ़ा रहा है बगैर किसी मुआवजे के। एक अंधा फकीर अपने झोंपड़ी में कुरान पढ़ रहा है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। बहलोल ने खलीफा से कहा, ये हैं मेरे उस्ताद।
उनके पास न तख्त है न ताज, मगर उनके दिल अल्लाह के करीब हैं। ये दुनिया की रेत पर नहीं, सब्र के पत्थरों पर महल बनाते हैं। खलीफा की आंखों में नमी आ गई। वो खामोश हो गया, मगर उसका दिल बोलने लगा। बहलोल ने आखिर में कहा, हुक्म देना आसान है, खुद बदलना मुश्किल। मगर जब बादशाह खुद दरवेश बन जाए तब सल्तनत सलामत होती है। इसी दिन से खलीफा हारून अल रशीद की जिंदगी में एक तब्दीली आ गई। वो अब महल में रहता था, मगर दिल उसका बाजारों, मस्जिदों और गरीबों में होता। हर रात की तन्हाई में वो बहलोल के अल्फाज दोहराता, रेत का महल, रेत का महल, रेत का महल। कुछ तब्दीलियां चीख कर आती हैं और कुछ खामोशी से अंदर तक असर करती हैं। हारून अल रशीद के महल में आने वाली तब्दीली इस दूसरी किस्म की थी। वही दरबार जहां पहले सिर्फ तारीफों की गूंज सुनाई देती थी, अब वहां सवालात भी उठने लगे थे, मगर उन सवालात का आगाज खुद खलीफा ने किया था। एक दिन सुबह की अदालत में खलीफा ने ताज पहने बगैर सादा लिबास में आकर बैठने का फैसला किया। दरबारी हैरान, वजीर परेशान, मगर कोई कुछ बोल ना सका। सब सोचते रहे कि शायद खलीफा का यह कोई नया अंदाज है, मगर उसके चेहरे पर जो गहराई और नजर में जो वकार था वो नया नहीं था, सच्चा था। खलीफा ने सबसे पहला हुक्म यह दिया कि मेरे तमाम वजीरों को हर जुमा अवाम के सवालात सुनने के लिए बाजार के करीब खड़ा होना होगा, और जो सवाल ना समझ आ सके वो मेरे पास लाए जाए। ये सुनते ही दरबारियों की जबान खुश्क हो गई। वो आदी थे पर्दों के पीछे रहकर हुक्म चलाने के, मगर अब उन्हें आम लोगों के बीच जाना था। महल के अंदर भी तब्दीली का तूफान चल रहा था। खलीफा ने खजाने के दरवाजे खोल दिए, लुटाने के लिए नहीं बल्कि परखने के लिए। बहलोल के मशवरे से एक नया इदारा कायम किया गया, दारुल अमान, जो यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों के लिए मखसूस था। बगदाद के कोनों से बच्चे जिनके सरों पर कोई साया न था अब तालीम पाने लगे, उन्हें खाना मिलने लगा और सबसे बढ़कर इज्जत मिलने लगी। एक दिन बहलोल खलीफा से मिलने आया, हमेशा की तरह चुप, सादा, मगर निगाह में हिकमत। खलीफा ने इसके सामने दस्तरखान बिछाया, मगर बहलोल ने हंसकर कहा, जिसके सामने सारा जहां झुकता हो वो दरवेश के लिए दस्तरखान क्यों बिछाता है? मुझे वही दो नवाले दे दो जो तुम अब गरीब को देते हो। खलीफा ने खुद अपने हाथ से सादा खाना दिया। वो लम्हा दरबार के लिए हैरत का था, लेकिन खलीफा के लिए फख्र का नहीं, सबक का लम्हा था। एक दिन खलीफा बहलोल के साथ बाजार में जा रहा था, बगैर किसी गार्ड्स के, सिर्फ एक छतरी लिए। बहलोल ने रास्ते में एक मजदूर को देखा जो गर्मी में काम करते हुए बेहोश होने वाला था। वो फौरन पानी लाया और उसके पांव दबाने लगा। खलीफा ने भी उसके साथ झुककर मजदूर को संभाला। लोगों ने जब खलीफा को देखकर पहचाना तो उनके होंठों से बेसाख्ता निकला, बादशाह, जो हमारे जैसा बन गया। बहलोल ने आहिस्ता से कहा, अब यह बादशाह नहीं रहा, अब यह खादिम है, और वही बादशाही है जो खिदमत से चमकती है, तख्त से नहीं। इसी दौरान दरबारियों और चंद वजीरों में एक खलबली मचने लगी। कुछ पुराने रुफका खलीफा की इस आजिजी को कमजोरी समझने लगे। वो खुफिया तौर पर एक साजिश की तैयारी में लग गए। उनका ख्याल था कि अगर खलीफा ने इसी तरह बहलोल के नक्श कदम पर चलना जारी रखा तो महल की ताकत कमजोर हो जाएगी और अवामी मोहब्बत एक दिन खलीफा को तख्त से नीचे भी ला सकती है। एक रात जब खलीफा तन्हा दुआ में मशगूल था, एक खादिम ने आकर सरगोशी की, ए अमीर अल मोमिनीन, महल में कुछ चेहरे मुस्कुराहट के पीछे जहर छुपा रहे हैं। खलीफा ने खामोशी से सर हिलाया। अगली सुबह उसने सब वजीरों को एक खुफिया दावत पर बुलाया। दावत आम थी, लेकिन इसके पीछे इम्तिहान था। दस्तरखान सादा था और खलीफा के चेहरे पर गहरी संजीदगी। उसने सबसे सिर्फ एक सवाल किया, अगर कल तख्त ना रहे तो तुम में से कौन मेरे साथ सजदे में खड़ा होगा?
दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के लबों पर झूठी मुस्कुराहट, किसी के माथे पर पसीना। तब बहलोल खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक छोटा सा चिराग था जिसे वो जलाए बगैर थामे खड़ा था। खलीफा ने पूछा, यह चिराग क्यों है? बहलोल ने कहा, ताकि जब सब रोशनी बुझा दे मैं तेरे दिल में बाकी सच्चाई की रोशनी देख सकूं। बगदाद अब जाग चुका था। खलीफा का चेहरा इसका अक्कास बन चुका था, आजिजी, रहम, खिदमत और खुद एहतिसाबी। मगर कुछ चेहरों पर अभी भी धुंध बाकी थी। साजिश अपने आखिरी वार के लिए तैयार हो रही थी। बगदाद में मौसम बदला हुआ था। सर्द हवाओं के झोंकों में एक अजीब सी बेचैनी तीर रही थी, जैसे फिजा में कुछ नया होने वाला हो, कुछ ऐसा जो खामोश दर और दीवार को चीखने पर मजबूर कर दे। खलीफा हारून अल रशीद ने दारुल हुकूमत की फिजा को खालिस बनाने के लिए जो तब्दीली शुरू की थी, वो सिर्फ गलियों में नहीं, दिलों में भी सरायत करने लगी थी। मगर कुछ दिल ऐसे भी थे जो इस तब्दीली से लरस गए थे, क्योंकि उनकी सल्तनत झूठ, मुफाद और धोखे पर खड़ी थी। महल में चंद वजीरों और दरबारियों ने चुपके चुपके मुलाकातें शुरू कर दी थीं। उनके चेहरों पर बदस्तूर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल में खंजर। उन्होंने महसूस कर लिया था कि बहलोल का असर खलीफा पर इतना गहरा हो चुका है कि बहुत जल्द दरबारी साजिशें, झूठी तारीफें और झूठे मनसब सब कुछ बेमनी हो जाएगा। एक रात महल के पिछले हिस्से में 6 वजीरों ने खुफिया मुलाकात की। चांदनी रात थी, लेकिन उनके इरादे अंधेरे से भरे हुए। अगर खलीफा इसी दरवेश की सुनता रहा तो कल हमारी कुर्सियां भी रेत बन जाएंगी, एक वजीर ने कहा। और अगर हमने कुछ न किया तो अगला हुक्म शायद हमारे महल्लात को यतीम खाने में बदलने का हो। दूसरे ने जहर भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। 3 मंसूबे बने। बहलोल को शहर बदर कर दिया जाए, खलीफा पर और जादू के जेरे असर आने का इल्जाम लगाया जाए, और अगर कोई रास्ता ना बचे तो जहर। अगली सुबह एक खास दावत का बंदोबस्त किया गया, खलीफा के लिए, बहलोल के लिए और चंद मुंतखब उलमा के लिए। मकसद था बहलोल को अवाम के सामने तज़हीक का निशाना बनाना। दावत में सब कुछ था, खुशबू, खुराक, फनकार, मगर माहौल में कुछ मसनूई सा सुकून था। खलीफा ने बहलोल को देखा, जो खामोशी से एक गोशे में बैठा हुआ था, हाथ में अपना पुराना सा असा, चेहरे पर बेनियाजी। तब एक दरबारी खड़ा हुआ और बड़े फसी अंदाज में बोला, ए बहलोल, तुम कहते हो बादशाहों को महल नहीं, सच्चाई अजीज होनी चाहिए। क्या तुम जानते हो, अगर खलीफा तुम्हारी बात मान ले तो सल्तनत कमजोर हो जाएगी? बहलोल ने कोई जवाब ना दिया। खलीफा ने भी खामोशी इख्तियार किए रखी। दूसरा वजीर बोला, तुमने खलीफा को लोगों में आम कर दिया, इज्जत की चादर फाड़कर फकीर का लिबास पहना दिया। ये अदल नहीं, फरेब है। बहलोल ने सर उठाया और नर्म मगर पुरसर लहजे में बोला, जब तख्त जमीन से बुलंद हो तो तकब्बुर बढ़ता है, जब बादशाह जमीन पर झुके तो इंसाफ बुलंद होता है। मैंने खलीफा को इंसाफ सिखाया, इज्जत छीनी नहीं, जान लो ताज वो है जो दिल में हो, सर पर नहीं। दरबारियों को गुस्सा आ गया। एक वजीर ने झुलाकर कहा, ये दरवेश, ये फकीर अब हमें बादशाही सिखाएगा। खलीफा उठ खड़ा हुआ। इसकी निगाह में ना गुस्सा था ना खौफ, सिर्फ यकीन। हां, ये दरवेश अब हमें बादशाही सिखाएगा, क्योंकि ये वो है जिसने मुझे मेरे गुरूर से निजात दिलाई। पूरा दरबार सुन हो गया। बहलोल ने आहिस्ता से खलीफा का हाथ थामा और कहा, अगर आंखें खुल गईं तो रास्ता साफ हो जाता है, मगर ये याद रखो कि रोशनी के साथ अंधेरा भी हरकत में आता है। अभी इम्तिहान बाकी है। खलीफा ने बहलोल से वदा किया कि अब महल में सिर्फ वो लोग रहेंगे जिनके दिल साफ हों, और बाकी सबको जवाब दिया जाएगा। इस रात साजिश करने वाले वजीरों को बुलाया गया।
खलीफा ने उनके सामने वो तमाम खतूत और मुलाकातों की तफसीलात रख दें जो उसके खास गुलाम ने खुफिया तौर पर जमा की थी। सबके चेहरे पीले पड़ गए। मेरे दिल का रेत का महल अब ईमान का कला बन चुका है, खलीफा ने कहा। अब जो झूठ का पता हिलाएगा वो खुद ही उखड़ जाएगा। वजीरों को मुआफ नहीं किया गया, कुछ को माजूल करके शहर बदर कर दिया गया और कुछ को अवामी खिदमत में लगा दिया गया। महल के दर ओ दीवार में पहली बार वो गूंज सुनाई दी, अब ये बादशाह नहीं उम्मत का खादिम है। बहलोल दरबार से खामोशी से निकला, जाते जाते बस इतना कहा, रेत का महल अब सच का मीनार बन चुका है, लेकिन याद रखना इसे रोज झाड़ना पड़ेगा वरना धूल फिर चढ़ जाएगी। बगदाद की गलियों में अब खामोश इनकलाब बोलने लगा था। वो दरबार जो तख्त के गुरूर में डूबा हुआ था अब अवाम की दुआओं से आबाद हो गया था। खलीफा हारून अल रशीद की आंखों की चमक अब सोने की नहीं सच्चाई की थी। महल की दीवारों पर अब खत्ताती नहीं खादमों की आवाजें गूंजती थीं। साए में बैठे सादात, उलमा, फकीर और सबसे अहम बहलोल दाना। खलीफा अब रोज सुबह महल से निकलता, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता, बाजारों, यतीम खानों, मस्जिदों, दरसगाहों और बीमार खानों में। इसके साथ न सिपाही होते न वजीरों की फौज, सिर्फ एक खामोश सच्चाई जो उसे बहलोल से मिली थी। एक दिन खलीफा को इत्तला मिली कि शहर की सबसे पुरानी गली में एक अंधी औरत बरसों से झोंपड़ी में बीमार पड़ी है और कोई पूछने वाला नहीं। खलीफा फौरन उसके पास गया। फटे पुराने पर्दे के पीछे एक बूढ़ी औरत दर्द से करा रही थी। खलीफा ने इसके पांव दबाए, पानी पिलाया और दवाएं दे। जब इसने कहा कि वो खलीफा है, औरत के होंठों से बेसाख्ता निकला, अगर तो बादशाह है तो खुदा वाकई बादशाहों को सीधी राह पर ला सकता है। इसी रात बहलोल दरबार आया। उसने खलीफा को गहरे लहजे में मुखातिब किया, तूने रेत के महल को सच का कला बनाया, अब वक्त है इसके दरवाजे खोलने का। खलीफा ने पूछा, किसके लिए? बहलोल ने कहा, उनके लिए जिनका सच दब गया, जिनके आंसू रेत में जज्ब हो गए और जिनकी आहें तेरा रास्ता रोक सकती थीं, मगर तो झक गया, इसलिए तो बच गया। अगली सुबह खलीफा ने अवामी जलसे का ऐलान किया बगदाद के मरकज में, जहां हर तबके के लोग जमा हुए, कोई रेशम में, कोई फटे कपड़ों में, मगर आज सब बराबर थे। खलीफा ने एक बुलंद जगह पर खड़े होकर कहा, मैं वो हारून हूं जो कभी खुद को खुदा के नायब से कम न समझता था और आज मैं तुम्हारा खादिम हूं। मजमा खामोश हो गया। फिर खलीफा ने वो सब कुछ बयान किया, अपनी रात की वो नींद, बहलोल से पहली मुलाकात, बाजार में मजदूर को पानी देना, साजिश का मुकाबला और वो बूढ़ी औरत की दुआ। हर लफ्ज के साथ मजमा का दिल धड़कने लगा। फिर बहलोल आगे बढ़ा और खलीफा के साथ खड़ा होकर बोला, रेत से अगर कोई महल बन जाए तो वो देर पा नहीं होता, मगर अगर ईमान का पानी इस रेत को भिगो दे तो वो कला बन जाता है। तब बगदाद के अवाम ने एक साथ कहा, हमें ऐसा बादशाह कबूल है जो अल्लाह के आगे झुकने वाला हो। खलीफा की आंखों में आंसू थे। बहलोल ने आखिरी नसीहत की, बादशाही तख्त पर नहीं दिल की जमीन पर की जाती है, वहां जहां इंसाफ, रहम और सच्चाई बसेरा करे। ये आखिरी मुलाकात थी। चंद दिन बाद बहलोल बगदाद से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहां गया। सिर्फ ये कहा जाता है कि जब भी बगदाद में कोई जुल्म होता, किसी दरवेश की खामोश आहरात के अंधेरे में सुनाई देती। खलीफा हारून अल रशीद ने अपनी जिंदगी बहलोल की नसीहत पर गुजारी। उसने न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे बगदाद को सच्चाई, आजिजी और खिदमत के रास्ते पर लगा दिया। आखिरी वक्त में जब उसकी आंखें बंद हो रही थीं, तो उसके लबों पर बस एक जुमला था, रेत का महल अब ईमान का कला बन चुका है। यह कहानी महज एक बादशाह की तब्दीली की नहीं, ये एक दिल की बेदारी, गुरूर की शिकस्त और दरवेशी की हिकमत की गवाही है।
अगर आज भी कोई हाकिम, कोई लीडर आहता के एक आम इंसान बहलोल की दानाई और हारून की तौबा से सीखना चाहे तो यकीन जानिए रेत से भी चिराग जल सकते हैं और तख्त से भी खाक उड़ सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एम स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मजीद रूहानी, सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली हकीकत पर मबनी दास्तानों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जज़ाक अल्लाह खैर। अगली कहानी तक अल्लाह निगहबान।